آج آپ دیکھنے والے ہو ایک کرائم ہارر مووی جس کا نام ہے فرام ہیل۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کہانی کی شروعات میں ہم میری نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے ایک آدمی پکڑ کر ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میرے لیے کام کرنا شروع کر دو، نہیں تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اور یہ آدمی ہر پروسٹیٹیوٹر کے ساتھ ایسا ہی کر رہا تھا، کیونکہ جب یہ لڑکیاں اس آدمی کے لیے کام کرتی تو اسے بہت سے پیسوں کا فائدہ ہوتا۔ اگلے دن میری اپنی ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی کہ تبھی اس کی ایک فرینڈ اس کے پاس آتی ہے جس نے کچھ ٹائم پہلے ایک بہت ہی امیر پینٹر سے شادی کر لی تھی اور اب اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ وہ میری سے ایک دن کے لیے اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے یہ ٹائم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزارنا تھا۔ میری کہتی ہے میں اس بچی کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آدمی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں، ہمیں اس سے خطرہ ہے اور ایسے میں اس بچی کا خیال کیسے رکھ سکوں گی۔ تو اس کی دوست پرابلم دور کرنے کے لیے اپنے ہسبینڈ سے کچھ پیسے لے کر انہیں دینے کی آفر کرتی ہے اور ان پیسوں کو وہ بوڑھے آدمی کو دے کر اس سے اپنی جان چھڑا سکتی ہیں۔ اور یہ بات سن کر میری مان جاتی ہے، لیکن کچھ ہی ٹائم بعد میری کی آنکھوں کے سامنے کچھ لوگ میری کی دوست اور اس کے ہسبینڈ کو پکڑ کر لے جا چکے تھے۔ میری پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس ان کی بیٹی تھی جس سے فیڈ کروانے تک کے بھی میری کے پاس پیسے نہیں تھے اور اب کافی رات بھی ہو چکی تھی۔ میری کی دوست اسے بچی کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود پیسوں کا انتظام کرنے باہر جاتی ہے، لیکن راستے میں کچھ لوگ اسے پکڑ کر بڑی ہی بے دردی سے اسے مار دیتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ان لوگوں نے اس کی باڈی کے سارے آرگنز بھی نکال لیے تھے۔ پولیس یہاں آتی ہے لیکن جب انہیں یہ کیس سمجھ نہیں آتا تو اس کیس کی انویسٹیگیشن کا کام انسپیکٹر فریڈرک کو دینے کا سوچا جاتا ہے، جو کہ اپنی سکس سینس اور فیوچر کی ہلکی سی جھلک دیکھنے والی پاور کی وجہ سے کرائم سین کا پتہ لگانے میں ماہر تھا۔ اس کے پاس اس کے ایک ساتھی انسپیکٹر آتے ہیں اور جب وہ اس سے عجیب طریقے سے ہونے والے مرڈر کی کہانی بتاتے ہیں تو فریڈرک اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں رائل فیملی کے ایک ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جو شہر کے سب سے بڑے سرجن بھی تھے۔ انہوں نے پاگلوں کے علاج کے لیے سرجری کا ایک طریقہ ڈھونڈا تھا اور اسی طریقے کو آج وہ ایک پیشنٹ پر ایکسپیریمنٹ کرنے والے تھے، اور وہ پیشنٹ کوئی اور نہیں بلکہ میری کی وہی دوست تھی جسے کچھ لوگوں نے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ گھر سے اٹھایا تھا اور اب اسے پاگل قرار دے کر یہاں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹرز اپنا کام شروع کرتے ہیں اور پھر سین شفٹ ہوتا ہے۔ میری اور اس کی ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے جو پچھلے دنوں اپنی ساتھی کے ہوئے مرڈر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کام اسی بڑے آدمی کا ہے جس نے انہیں اپنے ساتھ کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ انہوں نے اسے یاد ہی کیا تھا کہ تبھی وہ وہاں آ گیا اور اس نے اس کی ساتھی کے کام کے پیسوں میں سے آدھے پیسے لے لیے، اور اس کے ایسا کرنے سے وہ لڑکی اداس اور پریشان ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور راستے میں ایک آدمی اسے گریپس کا لالچ دے کر اپنی بگی میں بٹھا لیتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دور جانے پر اس کا گلا کاٹ کر اسے مار دیتا ہے اور پہلے ہوئے مرڈر کی طرح اس کے بھی آرگنز نکال لیے جاتے ہیں۔ یہاں پر فریڈرک انویسٹیگیشن کے لیے آتا ہے اور وہاں وہ گریپس کی ڈنڈیوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ مارنے والوں نے پہلے اس کا گلا کاٹا اور پھر اس کی چھاتی پر وار کر کے اس کا پیٹ کاٹا اور اس کی ساری آنتیں باہر نکال لی، جس کے بعد فریڈرک اپنے سینئر آفیسر کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ پڑھے لکھے سرجن کا کام ہے، کیونکہ اس کی باڈی سے آرگنز نکالنے کے لیے سرجری بلیڈز کا استعمال ہوا ہے جسے کوئی عام انسان اتنی مہارت سے نہیں چلا سکتا۔ اور ان ڈیڈ باڈیز کے پاس ملی گریپس کی ڈنڈیاں بھی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ کام کسی امیر آدمی کا ہے، لیکن آفیسر اس ساری کہانی کو بیکار مانتے ہوئے فریڈرک کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی سے اس کیس کو سالو کرو اور ختم کرو۔ اب اگلے دن مرنے والی لڑکی کا فیونرل تھا۔ میری اور اس کی سبھی ساتھی یہاں موجود تھی۔ فریڈرک بھی یہاں آتا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میری اور اس کی ساتھیوں سے کچھ انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن وہ سبھی اسے اگنور کر کے آگے بڑھ جاتی ہیں اور میری سے مرڈر کی بات کرنے پر میری بتاتی ہے کہ یہ کام اسی بڑے آدمی کا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن فریڈرک کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس سے وہ اس آدمی کو قاتل مانے۔ اب رات میں سبھی لڑکیاں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، تبھی گھر کا اونر آ کر انہیں گھر سے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے انہوں نے گھر کا رینٹ پے نہیں کیا تھا۔ ادھر کلر بھی اپنی ایک اور شکار کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اب وہ میری کی ایک اور ساتھی کو گریپس کے لالچ میں پھنسا کر بڑی ہی بے دردی سے اس کا بھی گلا کاٹ دیتا ہے۔ فریڈرک اس کیس میں بھی جب پچھلے کیس سے ملے جلے ایویڈنس جیسے کہ گریپس کی ڈنڈیاں اور اس کی باڈی سے نکلے آرگنز کو نوٹس کرتا ہے تو وہ خود ہی ایک ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ یہاں فریڈرک پہلے ایک ینگ ڈاکٹر سے مل کر اسے اس کیس میں ہیلپ کرنے کو کہتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو اس کیس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، پر یہیں پر موجود رائل فیملی کے ڈاکٹر اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ فریڈرک انہیں بورڈ پر ایک ڈرائنگ بنا کر دکھاتا ہے اس ہتھیار کی جس سے کلر سب کو مار رہا تھا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ یہ سرجری بلیڈ ہے۔ وہ فریڈرک کو اپنی سرجری بلیڈ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر فریڈرک کا شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ مرڈر کرنے والا سرجن ہی ہے۔ اپنی
अच्छी सिक्स सेंस से उसे ये मालूम हो जाता है कि किलर अगला मर्डर कहाँ करने वाला है। उस जगह का पता चलते ही वो अपने लोगों को वहाँ फैलने का हुक्म देता है और अब अगले सीन में हमें किलर के ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने हर मर्डर में किलर का साथ दिया था और अब वो इन सब से थक चुका था और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो वो किलर से ये सब रोकने का कहता है, लेकिन किलर कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, हम सब हेल में हैं और ये सब करना हमारी मजबूरी है। उधर फ्रेडरिक मैरी से उसके साथियों के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मिलता है। वो फ्रेडरिक को उसके पूछे गए सवालों का जवाब देती है और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड की किडनैपिंग के बारे में भी बताती है। उसे किडनैपर्स का हुलिया भी याद था। बातों ही बातों में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फ्रेडरिक यहाँ उसे अपनी सुपर पावर के बारे में बताता है कि उसे फ्यूचर की झलक दिखती है, यानी कि उसे फ्यूचर के विजन्स आते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक अपने कुलीग इंस्पेक्टर से मिलकर बात करता है और किडनैपर्स का हुलिया बताने पर इंस्पेक्टर बताता है कि जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो वो रॉयल फैमिली के ऑफिसर्स हैं और क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करती हैं। वो फ्रेडरिक को उसके ऑफिस के सामने ले जाता है और फ्रेडरिक ऑफिस के अंदर जाकर मैरी की दोस्त की फाइल चुरा लेता है, जबकि उसका दोस्त एक जलते ड्रम के जरिए बाहर खड़े ऑफिस के लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके फ्रेडरिक को बाहर आने का मौका देता है। इस फाइल से मैरी की दोस्त का पता चलने के बाद वो मैरी को उसकी दोस्त के पास मेंटल हॉस्पिटल ले जाता है, जो अब मैरी से बात नहीं करना चाहती थी। ये दोनों अब यहाँ से निकलते हैं और एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, जहाँ पर मैरी अपने दोस्त के हस्बैंड की पेंटिंग देखती है और उसके नीचे जब वो उसका नाम पढ़ती है तो वो हैरान रह जाती है। वो पेंटर कोई और नहीं बल्कि प्रिंस यानी कि क्वीन विक्टोरिया का पोता था। जहाँ मैरी ये बात जानकर हैरान रह जाती है। फ्रेडरिक को ये बात जानकर अच्छा खासा झटका लगा था। वो फौरन रॉयल फैमिली के डॉक्टर के पास जाता है, जिनके ऑफिस के बाहर यंग डॉक्टर था। वो रॉयल फैमिली के डॉक्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी प्रोसिक्यूटर्स को प्रिंस खुद मारे हैं, लेकिन वो डॉक्टर ये कहकर इनकार कर देता है कि प्रिंस बहुत ज्यादा बीमार है, मैं खुद इनका इलाज कर रहा हूँ और जिस तरीके से वो सारे कत्ल हुए हैं प्रिंस ये सब नहीं कर सकते। तभी सीन कट होता है और हम प्रिंस को चेयर पर बैठा देखते हैं, जिनके ऊपर वो यंग डॉक्टर कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रेडरिक भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ था और उससे एक दिन किलर का लेटर मिलता है। लेटर के साथ आधी इंसानी किडनी भी थी, जिसका दूसरा हिस्सा किलर खा चुका था और ये सब लेटर में लिखा था। वो लेटर पर पता देखते हैं, लेकिन वहाँ लिखा हुआ था फ्रॉम हेल। अब देखा जाता है कि किलर एक और मर्डर की तैयारी में है। वो सड़क पर चलती एक और प्रोसिक्यूटर को अपने जाल में फंसा लेता है और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर बेदर्दी से उसका गला काट देता है। और इससे पहले कि वो उसके ऑर्गन्स निकाल पाता, यहाँ एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे डरकर ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेडरिक इस क्राइम सीन पर पहुंचता है तो समझ आता है कि किलर आज एक और मर्डर करेगा, क्योंकि उन्होंने इस बॉडी से ऑर्गन्स नहीं निकाले थे और उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। किलर एक और शिकार को मार चुका था। फ्रेडरिक की सिक्स सेंस जब उसे कुछ भी बुरा होने का बताती है तो वो चेक करने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ आदमी घेर लेते हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉयल फैमिली के ही ऑफिसर्स थे। वो लोग उसे खूब पीटते हैं क्योंकि उसने रॉयल फैमिली के ऑफिसर पर इन्वेस्टिगेट की थी। फ्रेडरिक को तो ये भी लगता था कि यही ऑफिसर्स प्रोसिक्यूटर्स के मर्डर में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि ये सभी क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करती हैं और उन्हीं के कहने पर वो प्रिंस की प्रोसिक्यूटर से शादी को छुपाने के लिए वो शादी पर आई सभी प्रोसिक्यूटर्स को मार रहे होंगे। फ्रेडरिक को मार पीट कर ये लोग उसे यहीं छोड़ जाते हैं। वो हिम्मत करके उठता है और दूसरे मर्डर तक पहुंच जाता है। यहाँ इस बार उसके सीनियर भी आए थे। किलर ने इस लड़की को मारने के बाद दीवार पर लिखा था कि सारे मर्डर्स के पीछे ज्यूस यानी कि यहूदी नहीं है, क्योंकि पहले इस मुल्क में रहने वाले लोगों को लगने लगा था कि इन सारे मर्डर्स के पीछे ज्यूस यानी कि यहूदी हैं और उन्हें खत्म करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए थे। ज्यूस की जानों को खतरा होने लगा था और वो लोग घर में बंद रहने पर मजबूर थे। फ्रेडरिक के सीनियर उसे दीवार से ये सब मिटाने को कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने से मुल्क में दोबारा से ज्यूस के खिलाफ हंगामे हो सकते हैं। अपने सीनियर की बात ना मानने पर उसे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और उसे विजन्स आता है कि किलर अब मैरी को मार रहा है। वो मैरी की जान बचाने के लिए उसके पास कुछ पैसे और एक लेटर भिजवाता है, जिस पर लिखा था कि वो इस शहर को छोड़कर दूर चली जाए। फ्रेडरिक का विजन्स ठीक था, क्योंकि हम देखते हैं कि किलर का ड्राइवर अब मैरी के पीछे है। इस विजन के बाद फ्रेडरिक दोबारा रॉयल डॉक्टर के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है कि जो कोई भी मर्डर कर रहा है वो क्वीन विक्टोरिया के लिए काम करता है और प्रिंस की प्रोस्टिट्यूट से शादी की खबर को छुपाने के लिए उसकी शादी में आई सभी प्रोस्टिट्यूटर्स को मार रही हैं। फ्रेडरिक कहता है कि आप भी क्वीन के पुराने आदमी हैं, क्या आपको उन्होंने प्रिंस की शादी छुपाने की ऑफर नहीं की? ये बात सुनते ही डॉक्टर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसके मुंह से फ्रेडरिक के सामने सारी सच्चाई निकल जाती है कि असल में वही क्वीन विक्टोरिया के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने ही
प्रिंस की शादी की खबर छुपाने के लिए मर्डर भी किए और उनके 3 साथी भी थे, वो यंग डॉक्टर, फ्रेडरिक के सीनियर ऑफिसर और रॉयल फैमिली के ऑफिसर। ये सब सुनते ही फ्रेडरिक उन्हें मारने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन इससे पहले वो गोली चलाता डॉक्टर का दूसरा साथी पीछे से फ्रेडरिक पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। रॉयल डॉक्टर मैरी को कत्ल करने निकल जाते हैं, जबकि उसके बाकी साथी फ्रेडरिक को मारने में लग जाते हैं। यंग डॉक्टर उसे मारने के लिए पॉइजन वाला इंजेक्शन भर रहा था, लेकिन फ्रेडरिक बहुत ही हलचल मचाता है और इस सब में वो इंजेक्शन डॉक्टर को लग जाता है। रॉयल ऑफिसर चलती गाड़ी से गिर जाता है और इन सब का फायदा उठाते हुए फ्रेडरिक भी मैरी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन इससे पहले वो मैरी को बचाने पहुंचता वो डॉक्टर मैरी को बड़े ही बुरे तरीके से मार चुका था। यहाँ पर फ्रेडरिक के सीनियर ऑफिसर्स भी आ चुके थे। वो उनसे पूछते हैं बताएं मुझे डॉक्टर कहाँ मिलेगा, लेकिन उसके सीनियर ऑफिसर्स उसे कुछ नहीं बताते, उल्टा उसे डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अब फ्रेडरिक जब डेड बॉडी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो तो मैरी है ही नहीं, और पता चलाने पर शॉपकीपर उसे एक लेटर देता है जिस पर लिखा था कि वो अपने गांव चली गई है और उसके साथ उसकी दोस्त की बेटी भी है और अब से उसकी जिंदगी का मकसद उस बच्ची को पालना है। सीन कट होता है और हम क्वीन विक्टोरिया को देखते हैं जो कि लॉर्ड पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि उन्होंने डॉक्टर और लड़कियों को मारने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया था ताकि प्रिंस की प्रोस्टिट्यूटर से शादी की खबर आगे ना फैल सके। लेकिन लॉर्ड और उसके कुछ आदमियों ने मिलकर उन लड़कियों के ऑर्गन्स निकालकर रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। लॉर्ड क्वीन से इस बात की माफी मांगते हुए बताते हैं कि क्वीन विक्टोरिया का काम भी पूरा हो चुका है, प्रोस्टिट्यूट से शादी के सारे सबूत मिट चुके हैं। क्वीन ये जानकर बहुत खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस डॉक्टर को पकड़ चुकी थी। उन्हें कोर्ट लाया जाता है, लेकिन कोर्ट में डॉक्टर ने किए की माफी नहीं मांगते। उनके इस एक्शन से कोर्ट को लगता है कि डॉक्टर पागल हो चुके हैं और उन्हें सजा दी जाती है कि इन्हीं के निकाले पागल लोगों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स अब इन पर किए जाएंगे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि मैरी अपनी दोस्त की बेटी के साथ समुद्र के किनारे बने एक छोटे से घर में रहती है और ये वही विजन था जो फ्रेडरिक ने काफी सालों पहले मैरी के लिए देखा था। मूवी के लास्ट सीन में फ्रेडरिक के घर उसका कुलीग आता है उसे जगाने के लिए और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि फ्रेडरिक मर चुका है। फ्रेडरिक के हाथ में मौजूद सिक्कों से उसके कुलीग को पता चलता है कि उसने अपनी वाइफ के गम में और मैरी की याद में सुसाइड कर लिया है। फ्रेडरिक का कुलीग ये सिक्के उठाकर उसकी आंखें बंद करके उसकी आंखों पर रख देता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।